Hello students, I am Nabila Tariq. Today we will discuss the chapter Glimpses of the Past, that is the third chapter of your Honeydew textbook. Okay, in this chapter we will be discussing the historical India, that is India before independence, how Britishers came as traders and finally occupied the major part of India and ruled for many years. Now, what were the weaknesses of our kings? What our kings had those kind of weaknesses because of which India became slave to Britishers? All these points we will discuss in this chapter. Okay, before wasting much time, come to before you read. Here are some pictorial glimpses of the history of a country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. Now, everyone knows the First War of Independence. The first war which led to the War of Independence, that was in 1857. What were the reasons behind this war? Means what were the consequences or the conditions that prevailed at that time that led this war, that was the famous War of Independence? So, the martyrs. Martyr means people who sacrifices their lives for their country. Shaheed जिसे कहते हैं. Now, this is a picture where Lata Mangeshkar is addressing the country by her beautiful song, and you can see some of her famous leaders sitting over there, which includes Jawaharlal Nehru. These people are sitting here as our country has gained independence. Now, come to the second point. Now, here we are coming back to free India. India that at that point of time when foreign British people had come as traders. What were the conditions at that time of India? The company's conquest in the year 1757 to 1849. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in the 18th century India. Now, ब्रिटिश ऑलवेज हैड सुपीरियर वेपन्स, मतलब उनके पास जो वेपन्स थे वो कहीं ज़्यादा एडवांस थे हम लोगों के वेपन्स के कंपैरेटिवली. इसकी वजह से वो उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश एम्पायर था, वो अपना पावर काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर चुकी थी. जैसे आप देख सकते हैं जो येलो कलर का है मैप में, दैट इज़ इंडियन प्रिंसेस, मतलब वो जगहें हैं जो इंडियन किंग के अंडर में हैं. और जो पिंक में है दैट इज़ द टेरिटरीज विच वर ऑक्यूपाइड बाय ब्रिटिशर्स. सो अभी तो इतना ऑक्यूपाई किया था, बट स्लोली एंड स्लोली वो पूरा इंडिया ऑक्यूपाई करने लगे थे बिकॉज ऑफ देयर यू मे से एडवांस्ड वेपन्स. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. दैट upstart Raja Ba called the English merchants, they will help me to defeat him. The people had no peace due to such constant fights. Now, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. शॉर्ट साइटेड मीन्स दूरदर्शी नहीं थे. इंडिया के जो राजा महाराजा थे वो आगे का नहीं सोच पाते थे, वो प्रैक्टिकली और या रैशनल थिंकिंग नहीं थी उनकी. उनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनकी हेल्प करेंगे, तो वो आपस में एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे और ब्रिटिशर्स की हेल्प लेते थे जीतने के लिए. और ये एक ऐसा वीक पॉइंट था जिसका एडवांटेज ब्रिटिशर्स ने उठाया. The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. The rivalries means जो उनकी आपसी लड़ाई थी, लड़ाई झगड़ा था, नफ़रत थी एक दूसरे से, मतलब इंडिया में ही एक राजा दूसरे राजा से, एक प्रोविंस का हेड दूसरे प्रोविंस के हेड से जो उनके आपस में मतभेद थे, उसका फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी दैट मीन्स ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से उठाया. एंड दे ईज़िली सब्ड्यू मीन्स उन्होंने इंडियन प्रिंस, इंडियन राजा महाराजाओं को बहुत आसानी से दबा दिया. A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. Now this is about Tipu of Mysore, Tipu Sultan of Mysore, who bravely fought with Britishers and he died. Thank God there is peace in the country now. No wars and no looting. It is God who sent British. Our destiny is linked with them. This is how Indians reacted to this conquest. Now, जब ये लोग आपस में लड़ते थे, ब्रिटिशर्स इनकी हेल्प करते थे और ये लोग जीत जाते थे,
तो ये लोग गॉड को, दे आर थैंकिंग गॉड, वो भगवान को थैंक्स बोल रहे हैं कि ब्रिटिशर्स को ऊपर वाले ने भेजा है, भगवान ने भेजा है हम लोग की हेल्प करने के लिए। एंड दे आर सेइंग आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, मतलब हमारी किस्मत में जो भी अच्छा होगा वो सब ब्रिटिशर्स की वजह से होगा। सो दिस इज़ द शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी दूरदर्शी नहीं थे, वो अपना ही भला नहीं सोच पाते थे। एंड दीज इंडियन प्रिंसेस सॉरी वो नॉट एट ऑल, दे वर लाइक वेरी शॉर्ट साइटेड, वो अपना भला नहीं सोचते थे और ब्रिटिशर्स को ये पूरा मौका मिला यहाँ पे इंडिया पे अपना कब्ज़ा करने का। सो दिस वॉज द फुलिशनेस ऑफ इंडियन किंग्स। The white man has killed or dethroned our kings. Some kings were not good, but after all, they were of this land. Now we have become slaves of foreigners. फिर कुछ वक्त ऐसा ही चला, ब्रिटिशर्स इंडियन राजास की हेल्प करते थे एक दूसरे को हराने में। उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने अपना एम्पायर को एक्सपैंड किया और बहुत सारे प्रोविंसेस, बहुत सारे स्टेट्स अपने अंडर में लेते गए और वहाँ के राजा को वहाँ से हटा दिया। डिथ्रोन मीन्स थ्रोन, मतलब जो उनका राजा थे, राजा के पद से उनको हटा के और ख़ुद वहाँ के किंग, वहाँ के हेड बन गए। धीरे धीरे लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी दैट ब्रिटिशर्स आर यूजिंग देयर फेथ एंड दे आर ट्राइंग टू डिथ्रोन देयर किंग्स एंड कैप्चर होल ऑफ द कंट्री। और अब उनको ये भी रियलाइज़ हुआ इंडियंस को दैट दे आर बिकमिंग स्लेव्स, मतलब वो स्लेव्स बन रहे हैं ब्रिटिशर्स के। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ ब्रिटिश रूल दैट वाज फ्रॉम 1765 to 1836. Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. Anyone who crosses the seas loses his religion. All the misery in the world is due to women. ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इंडिया के या इंडियंस के उस टाइम पे जो इंडियंस को ख़ुद वीक बनाते थे। जैसे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया दैट इंडियन किंग्स वर शॉर्ट साइटेड, वो लोग प्रैक्टिकल नहीं थे, आगे का नहीं सोच पाते थे, बहुत ईजीली उन्होंने ट्रस्ट किया, आपस में लड़ते रहे। ब्रिटिशर्स को मैसेंजर ऑफ गॉड माना कि गॉड ने उनको भेजा है। थर्ड पॉइंट ये है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन था, मतलब पुरानी सोच थी, ऐसी सोच थी जिसकी वजह से इंडिया कभी ख़ुद वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए और जिसका पूरा फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। वो रिलीजियस लीडर्स जो धार्मिक गुरु थे वो अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग कुछ बैकवर्ड एंड सुपरस्टिशियस आइडियाज़ लोगों को प्रीच करते थे मीन्स लोगों को सिखाते थे, जैसे अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज, जैसे छुआछूत, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, बचपन में शादी कर देना। ये चीज़ें बहुत बड़े वीक पॉइंट्स थे इंडिया के। लाइक एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। रिलीजियस टीचर्स यूज्ड टू टीच द पीपल नॉट टू क्रॉस द सी। अगर वो समुद्र पार करेंगे तो वो अपना रिलीजन खो देंगे। सो लोग डर के मारे समुद्र पार नहीं करते थे, विच ब्रॉट अ ग्रेट सेटबैक टू द ट्रेड। मतलब आपके ट्रेड में, आपके बिजनेस में, आपके काम में आपको समुद्र क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह जाना ही है इन ऑर्डर टू डेवलप। लेकिन जब आप खुद ही समुद्र को क्रॉस नहीं करोगे बिकॉज यू आर फ्राइटेड ऑफ लूजिंग योर रिलीजन, ऑफ कोर्स यू विल हैव अ सेटबैक। देन पीपल इवन यूज टू से ऑल द मिजरी इन दिस वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन, कि मतलब इस दुनिया में जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो विमेन, औरतों की वजह से हैं। ये फिर अगेन एक बहुत बैकवर्ड सी सोच है, बहुत एक पुरानी सोच है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो विमेन की वजह से हैं, उसकी वजह से विमेन को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता था। एंड सो अगेन दे यूज टू बी अनएजुकेटेड एंड अगेन इट वॉज अ डाउनफॉल टू द इंडियन एम्पायर। The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. सच्चाई ये थी कि इंडिया ने अपनी ख़ुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खोते जा रहे थे बिकॉज ऑफ देयर मैनी वीक पॉइंट्स। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। ब्रिटिशर्स आपस में ये बोलते थे, नेटिव्स मतलब जो जिस जगह का रहने वाला है, वहीं पैदा हुआ है, वहीं पला बड़ा है, उसको बोलते हैं नेटिव। ब्रिटिशर्स इंडियंस को, इंडिया के लोगों को ये बोलते थे कि वो लोग अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट हैं, मतलब वो ट्रस्ट के काबिल नहीं हैं।
एंड दे आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, और वो ऑनेस्टी भी उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ब्रिटिशर्स को लगता था। ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि वो लोग आपस में लड़ते थे, ग्रीडी थे, एक दूसरे की प्रोविंसेस पे दे वर ट्राइंग टू कैप्चर द अदर पीपल्स प्रोविंसेस, दे केप्ट फाइटिंग अमंग ईच अदर। एट द सेम टाइम उनकी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड सोच थी, और बहुत से ऐसे इंडियन लोग थे जो ब्रिटिशर्स के साथ मिल के ख़ुद ही की कंट्री के ख़िलाफ़ गलत कर रहे थे। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया है, देयर इज़ एन इंडियन मैन विद अ टर्बन बिहाइंड अ ब्रिटिश मैन एंड ही इज़ सेइंग ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। मतलब वो हाथ जोड़ के ब्रिटिशर्स से ही कह रहा है कि मे बी बाकी के इंडियंस डिसऑनेस्ट होंगे लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया है बिकॉज ऑफ हिज ओन प्रॉफिट। तो अपने प्रॉफिट की वजह से अपनी कंट्री का नुकसान कर रहे थे। सो ब्रिटिशर्स नेवर ट्रस्टेड इंडियंस। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their field. Now, there was one more reason why India kept losing the land was that being merchants, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे merchants बन के आए थे। So they're saying कि as merchants they kept losing land, मतलब Britishers came as traders, यहाँ पे वो traders merchant बिजनेस का काम करने आए थे। वो क्विक प्रॉफिट्स के लिए, मतलब अपने प्रॉफिट के लिए वो इंडियन फार्मर्स पे इतना हैवी टैक्स कर रहे थे फार्मर्स को, कि फार्मर्स को अपनी ज़मीन उनको बेचनी पड़ रही थी, अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ रही थी। और आइदर दे यूज्ड टू सेल एट अ वेरी लो प्राइस, या फिर वो अपनी पूरी ज़मीन ब्रिटिशर्स को दे देते थे बिकॉज वो लोग इतना टैक्स पे नहीं कर पाते थे। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, यू आर स्टिल इन अरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। जितना भी अनाज वो लोग पैदा करते थे, क्रॉप पैदा करते थे, ऑल दैट क्रॉप द इंग्लिश मैन यूज टू टेक एंड नो प्रॉफिट वॉज गेन्ड बाय द इंडियन फार्मर्स। और वो लोग ये भी बोलते थे यू आर स्टिल इन अरियर्स। अरियर्स मतलब तुम अभी भी कर्ज में हो, अगर तुम अपना टैक्स और जो टैक्स है तुम्हारा वो अगर तुम पे नहीं करोगे सो आई विल सेंड यू टू जेल। सो दिस वॉज अगेन अ वेरी यू मे से miserable torture which was given to Indian farmers. Now, still the British invented other methods which gave them more profits. The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. A good idea. The East India Company's laws began to cripple Indian industries. Now, अभी इससे पहले हम लोग ने फार्मर्स के बारे में पढ़ा. नाउ वी विल कम टू द इंडस्ट्रीज पार्ट, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, द हैंडमेड प्रोडक्ट्स दैट वर मेड बाय हैंड, यू नो, इन सब के ऊपर कैसे असर पड़ा. Like they kept on making profits. Britishers kept on like making profits. They came up with different methods to increase their profits at a rapid rate. Now the goods manufactured in England should not have any import duty. मतलब जो गुड्स हैं जो इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उन पे आप कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाओगे जब वो इंडिया में आएंगे. ओके, सो अगेन वी विल नॉट गेन एनी प्रॉफिट. सो देन the British policies ruined the export artisans and their business. Now जो export artisans, जो आर्टिस्ट थे हम लोगों के इंडिया में, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में थे, या वो लोग को छोटी चीज़ें अपने हाथों से बनाते थे, क्राफ्ट्समैन थे, विच हैड पीपल जिनके अंदर जो आर्ट है वो अपनी आर्ट के थ्रू कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनकी लाइफ पूरी तरीके से ruin हो गई बिकॉज उनके सामान की जगह इंग्लैंड से सामान आता था. So these people lost their trade, these people lost their business. Now come to the fourth point, that is Ram Mohan Roy from the year 1772 to 1833. Ram Mohan Roy, a learnt man from Bengal, understood what was wrong with the country. Let us not despise ourselves. Our Asian culture is great. We are capable of great achievements. We must first reform our society. Superstitions are ruining us. Now Ram Mohan Roy वॉज अ लर्नड मैन. वो पढ़े लिखे थे, वो बंगाल के थे, और उनको ये रियलाइज़ होने लगा कि हमारी कंट्री अगर स्लेव बनती जा रही है, ग़ुलाम बनती जा रही है ब्रिटिशर्स के, तो इसके पीछे हमारी ही कोई ना कोई कमी है. लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्व्स. ही इज सेइंग वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स स्ट्रॉन्ग. हमारा जो एशियन कल्चर है वो बहुत ग्रेट है एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. फॉर वी मस्ट ब्रिंग रिफॉर्म्स. हमें कुछ न्यू चेंजेस लाने चाहिए अपनी सोसाइटी में. और सुपरस्टिशंस मतलब पुरानी सोच, बैकवर्ड सोच, इसको हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर रूइनिंग आवर ओन सेल्व्स.
He told his wife Oma, cows are of different colors, but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. वो अपनी वाइफ से कहते थे कि काउज़ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, जितने भी काउज़ हैं, गायें हैं, वो अलग अलग कलर की हैं, पर जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, जो वो दूध देती हैं, वो सेम होता है, दैट इज़ वाइट इन कलर. सिमिलरली बहुत सारे रिलीजन्स हैं इंडिया में, लेकिन जितने भी रिलीजन्स हैं वो सिखाते सिर्फ एक ही चीज़ है. द टीचिंग्स ऑफ ऑल द रिलीजन इज़ द सेम. असेंस, असेंस मीन्स किसी चीज़ का निचोड़, जो हम रस लेते हैं किसी भी चीज़ का, दैट इज़ कॉल्ड असेंस. सो द असेंस, द कंक्लूजन, द टीचिंग्स ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम. He was attracted by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. Now, Ram Mohan Roy was a learned man. He had quite a lot of knowledge about science also, and he had the knowledge about the modern world also. He used to say that knowledge should be practical and scientific. जो knowledge है वो rational होनी चाहिए, at the same time scientific होनी चाहिए. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them, "We accept you as rulers and you must accept us as subjects. But you must remember the responsibility a ruler owes to his subjects." वो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए और वहाँ पे उन्होंने जानने की कोशिश करी कि इंग्लैंड में ऐसा क्या है, या वो लोग ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो लोग इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं. वहाँ जाके उन्होंने लोगों से बात करी और उन्होंने बोला कि हम आपको, उन्होंने ब्रिटिशर्स से बोला कि वी एक्सेप्ट यू एज़ रूलर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स तब तक इंडिया में काफ़ी हद तक अपने आप को स्प्रेड कर चुके थे एंड इंडिया को रूल करने लगे थे. तो राम मोहन रॉय ने बोला कि आपको हम रूलर्स की तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट यू शुड एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स. तो आपको भी हमको एक जनता की तरह लेना चाहिए, हम आपके लोग हैं और आपको अपना काम वैसे करना चाहिए जो आपके लोगों के लिए beneficial रहे. That means if we are your subjects, we are your people, your public, you should act in a very beneficial way. आप ऐसे रहो कि आप हमारे हित में काम करो. Okay, you act for our own, for our benefit, because we are your people. Now, the fifth point is operation. That is 1765 to 1835. मतलब कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को ऑप्रेस, दबाया, कैसे उनको डोमिनेट किया. But the British continued to oppress Indians. In 1818, they had passed Regulation 3rd under it, and Indian could be jailed without trial in court. बिना किसी केस के, बिना कोर्ट में किसी ट्रायल के इंडिया ब्रिटिशर्स इंडियंस को रेगुलेशन 3rd एक्ट के तहत जेल करा सकते थे. All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortune in private business. इसी दौरान ब्रिटिशर्स ने इंडिया से बिग सैलरीज, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट लेते रहे एज सैलरी. मतलब जो भी ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ थे इंडिया में जो काम कर रहे थे एंड दे वर ब्रिटिशर्स, उन एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा सैलरी मिली और उन्होंने अपने बिज़नेस में भी बहुत फॉर्च्यून, मतलब बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया. एंड दे बिकेम रिचर एंड रिचर एंड इंडियंस बिकेम पुअरर एंड पुअरर. बाय 1929 Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. Now imagine कितना प्रॉफिट उन्होंने कमाया इंडिया में. Governor General Bentinck reported back home. Now the British prospered, companies loot while Indian industries began to die. British prospered, the companies loot. ये लोग जितने भी इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी उनको लूटने लगे थे, उनको कैप्चर करने लगे थे और उनका सारा प्रोडक्शन, सारा अमाउंट, सब प्रॉफिट सब लेने लगे थे. सो दे बिकेम रिचर एंड इंडियन इंडस्ट्रीज़ बिगैन टू डाई. और इंडिया की जो खुद की इंडस्ट्रीज़ थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी. नाउ द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. एक गवर्नर जनरल थे बेंटिक, जो इंडिया आए और इंडिया के बाद वापस इंग्लैंड गए, तो उन्होंने वहाँ के लोगों से बोला दैट द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. कॉटन वीवर्स मतलब जो रुई का काम करते हैं, कॉटन से, जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं जहाँ पे कपड़ा बनता है थ्रू कॉटन, रुई. वीवर्स मतलब जो कॉटन ये कपड़े का काम करते हैं, दे आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. दे आर बिकमिंग सो पुअरर कि इंडिया के जो प्लेन एरिया है दे आर लाइक गेटिंग ब्लीच्ड मतलब ब्लीचिंग एजेंट जब होता है वो एक अपना कलर, जो एग्जिस्टिंग कलर होता है उसके ऊपर अपना कलर छोड़ता है ना. लाइक वी ब्लीच समथिंग सो इट बिकम्स वाइट. सो सिमिलरली जो कलर है इंडिया का, दैट इज़ गेटिंग ब्लीच्ड बिकॉज द इंडियन वीवर्स आर बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर.
Now the sixth point is dissatisfaction, that is from 1835 to 56. Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. We should teach the natives through the English language, and they all agreed. Now, एक dissatisfaction मतलब एक you know the meaning of dissatisfaction. Indians बहुत ज़्यादा dissatisfied हो गए थे, संतुष्ट नहीं थे, because इंडिया की जो एजुकेशन थी वो नॉर्मली या तो पर्शियन लैंग्वेज में थी या संस्कृत में थी, लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी. नाउ ब्रिटिशर्स के एक इंग्लिशमैन था, देयर वाज एन ऑफिसर हुज नेम वाज मैक्यूलाई. उसने एक सजेस्ट किया कि जितना भी बिजनेस होना चाहिए, जितने भी काम होना चाहिए इंडिया में, दैट शुड बी इन इंग्लिश. तो हमको जो इंडिया के लोग हैं उन्हें इंग्लिश सिखानी चाहिए. English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. Now, अब English जो language थी वो पढ़ाई गई. जो भी उसमें काम करते थे, उनको जो भी इंडियंस काम करते थे ब्रिटिश के अंडर में, उनको बहुत थोड़े थोड़े पैसे मिलते थे और बहुत छोटी छोटी नौकरियां मिलती थी. एक ये भी थी, एक ऐसा फेस जो नेगेटिव था कि हम लोग छोटी नौकरी मिलती थी और कम पैसे मिलते थे, बिकॉज ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में होती थी और इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती थी. लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड हुई, बहुत इंटेलेक्चुअल्स, बहुत लोग ऐसे भी हुए जो पढ़ लिख गए, जिन्होंने इंग्लिश पे अच्छा कमांड आ गया, जिन्हें चीज़ें आ गई इंग्लिश में करना. सो इट प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स ऑल्सो. एट द सेम टाइम पीपल वर वेरी डिससेटिस्फाइड बिकॉज दे नेवर न्यू इंग्लिश, सो दे नेवर गॉट good jobs, and as a result they got low wages or low salaries. By 1856 the British has conquered the whole of India. Now you can see the graph over here, how much is under Indian province, Indian prince and princess, and how many provinces are under the British control. They cared little about the needs of Indians. Our kings have become puppets and we have lost our old jobs, our lands. They are converting our brothers. They only talk, do something to drive them out. Now, अब इंडिया के लोगों को ये रियलाइज़ होने लगा और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि इंडियन किंग्स जो थे, जो राजा महाराजा बचे थे, वो पपेट्स मीन कठपुतली हो गए थे ब्रिटिशर्स के ऑर्डर के नीचे. उन्होंने नॉर्मली एक सबके लैंड छीन लिए थे, सबकी पुरानी जॉब्स छीन ली थी. एट द सेम टाइम दे वर कन्वर्टिंग द रिलीजन्स ऑफ द पीपल, लाइक दे वर कन्वर्टिंग द हिंदूज इनटू क्रिश्चियंस. सो दे वर कन्वर्टिंग द रिलीजन, विच वॉज अगेन अ वेरी बिग थिंग टू एक्सेप्ट. दिस वॉज ऑल कॉजिंग dissatisfaction among the Indian public, and they all wanted some spontaneous action against it. Now come to the seventh point, that is the sparks. वो चिंगारी, वो पहली चिंगारी जिसकी वजह से हम इंडिपेंडेंस के लिए लड़े. That was from 1855 to 1857. The important one. Taxes continued to ruin the peasants. In Bengal, the Santals who had lost their land under the new land rules became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. Now, टैक्सेस, हैवी टैक्सेस की वजह से लोगों ने अपने बहुत ज़्यादा ज़मीनें खोई, बहुत प्रॉब्लम्स आई उन्हें. र्यून द पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स को बोलते हैं पीजेंट्स को कम्प्लीटली बर्बाद कर दिया था टैक्सेस ने. इन बंगाल में संथल्स थे, एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्हें बोलते थे संथल्स. उन्होंने अपनी पूरी ज़मीन खो दी उस एक्ट की वजह से, जिसमें सबसे ज़्यादा टैक्सेस उनके लैंड पे लगा और उनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं बची. दे बिकेम डेस्परेट, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और एग्रेसिव, गुस्सा आया उन्होंने और उन्होंने सोचा कि कोई एक्शन लेंगे. इन 1855 दे रोज़ अ रिबेलियन, उसके बाद वो लड़े. 1855 में उन्होंने एक रिबेलियन, दे स्टार्टेड फाइटिंग एंड मस्कार्ड यूरोपियंस एंड द सपोर्टर्स अलाइक. और यूरोपियंस और उनके सपोर्टर्स को मस्कार्ड मीन्स उनको कम्प्लीटली रूइन कर दिया. उनके साथ लड़के समहाउ दे tried and they oppressed the Europeans and the supporters. उनको लड़के उनको मारा. Discontent was brewing in the East India Company's army too. ये संथल्स का ये एग्रेसिव एंड ये इस तरीका रिवोल्ट देख के इंडिया में और भी जो लोग थे उनके भी अंदर कुछ जोश आया. एंड दे ट्राइड टू फाइट and they thought of planning a fight against Britishers. Discontent was brewing in the East India Company's army too. Discontent means again dissatisfaction was brewing. Brewing means it was becoming more stronger and stronger in the East India Company's army. The white soldiers gets huge pay, mansions to live in, servants.
while we get a pittance and slow promotions. The Angrez ask us to cross the sea, which is against our religion. Who is the topi wala to abolish our old age customs? We must drive out the Angrez. Now, जो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसमें जो इंडियंस थे उनको ऐसा लगा कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा हैवी पे मिलती है, ह्यूज सैलरी मिलती है, मैंशंस मीन्स बड़े बड़े घर बंगले मिलते हैं और सर्वेंट्स भी मिलते हैं, तो बहुत ही लैविश तरह की लाइफ है उनकी. और उसी एंड एट द सेम टाइम एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स, द इंडियन सोल्जर्स यूज टू गेट पेटिसेंस मीन्स पिटी जॉब, मीन्स पिटी सैलरी, मतलब बहुत थोड़ी सी सैलरी, कम पैसे मिलते थे और प्रमोशन भी बहुत लेट होता था. एट द सेम टाइम वो लोग ये भी बोलते हैं कि अंग्रेज़ उनसे कहते हैं कि समुद्र क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह जाओ, अगेन जो उनके रिलीजन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि उनके इंडियन प्रीचर्स जो थे, जो रिलीजियस प्रीचर्स थे, दे यूज़ टू टीच देम नॉट टू क्रॉस द ओशन, अदरवाइज दे विल लूज़ द रिलीजन. तो वो बोलते हैं कि ये टोपी वाला मीन्स अंग्रेज़, क्योंकि वो नॉर्मली टोपी पहने रहते थे. ये कौन होते हैं जो हमसे ये बोलें कि आप लोग समुद्र क्रॉस करो? हुआ दे टू अबंडन आवर ओल्ड एज कस्टम, मतलब हमारे जो ओल्ड एज कस्टम है उन्हें हम कैसे छोड़ दें. नाउ वो लोग सोचते हैं कि हमें अंग्रेज़ को यहाँ से भगा देना चाहिए. सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड. नाउ thousands of other सिपाहीज रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ द यूनिफॉर्म. जितने भी लोगों ने, जैसे मंगल पांडे थे और भी लोगों ने, जिन जिन ने आगे आवाज़ उठाई, उनके स्ट्रिप्ड ऑफ द यूनिफॉर्म मीन्स उनको नौकरी से निकाल दिया, उनको ह्यूमिलेट किया, बेइज्जती करी. एंड दे वर पुट इन आयरन्स. आयरन मीन लोहे की बार्स मतलब जो प्रिजन के अंदर जो लोहे के बार्स होते हैं उसे बोलते हैं आयरन, और उन्हें जेल में डाल दिया, प्रिजन में डाल दिया, वो लोग जिन लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश करी. Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. Oh proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on these bullets you have to bite as made up of fat of cow and pig? What? The white man has deceived us too. Now, few Englishmen cared to understand Indian customs and people in mind. जब वो लोग इंडिया के लोगों को नौकरी देते थे, चाहे आर्मी में या जहाँ पर भी, तो वो कभी भी उनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते थे. कोई भी ब्रिटिशर ने किसी भी इंडियन सब्जेक्ट के सेंटिमेंट्स या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं सोचा. जो ब्राह्मण और मुस्लिम्स जो होते हैं, दे means in their culture they are not allowed to put anything in the mouth which is made out of any flesh. Like Brahmins are strictly against any meat which includes cow or pig, etc. At the same time, in Muslim culture, you are not allowed to put anything in your mouth which contains anything related to pig. So these animals were absolutely prohibited in India, especially their meat, their flesh. So Brahmin soldiers, do you know the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cow and pig? मतलब जो ब्राह्मण सोल्जर्स थे, जो उनको जो बुलेट अपने मुंह से काटनी पड़ती थी, वो या तो काऊ के फ्लैश से बनी होती थी या फिर पिग की. एंड दीज बोथ वर अगेंस्ट मुस्लिम्स ऑल्सो एंड द हिंदूज ऑल्सो. सो this was a reason of great dissatisfaction and an urge to fight for independence. Why? Because ये एक तरह से धोखा दिया ब्रिटिशर्स ने. इंडियन सोल्जर्स को ऐसा लगने लगा कि ब्रिटिशर्स ने उन्हें धोखा दिया, उनके रिलीजन के ख़िलाफ़ है, उनके मुंह में एक ऐसी चीज़ जा रही है जो उनके रिलीजन में पूरी तरीके से मना है. सो अगेन दिस वाज द रीज़न फॉर द स्पार्क. Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that the emperor would want their services. Yes, all my village men will be ready. Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers, death to the foreigner. The masses gave all help and shelter to the patriots. Now, अब उनको मैसेज सेंड करना था एक जगह से दूसरी जगह ताकि लोगों को इकट्ठा कर पाएँ लड़ाई के लिए. अब मैसेज कैसे सेंड करेंगे, बिकॉज ब्रिटिशर्स सब जगह मौजूद थे, तो वो लोग चपातीस पहुंचाते थे एज मैसेजेस. एक जगह से दूसरी जगह चपातीस देते थे लोग. चपातीस को सर्कुलेट किया गया जिससे ये मैसेज पहुंचता था कि आप क्या हमारा साथ देने के लिए तैयार हो कि नहीं. तो चपातीस हर विलेज में पहुंचाई जाती थी और लोगों को इकट्ठा किया जाता था लड़ाई के लिए. एट द सेम टाइम लोटस फ्लावर्स वर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स. इंडियन सोल्जर्स को लोटस के फूल देते थे, मीन्स कमल के फूल देते थे, जिससे ये मैसेज पहुँचे कि उनको अब लड़ना है ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़.
Okay, we'll discuss the next points in the next video.